visual now. You can start. Okay, I think shall You can we start, should sir. start. Okay, we can start. Yes. Uh, Good evening, all the learners. Sorry for the interruption because of some unstable internet connection. So I welcome you all on the course presented by the Proteni. You can first, I will give a little bit introduction about the course, and you can ask your queries once we are done with the course. Farhan, in between, if there is any issues, please let me uh, tell. Okay. So we shall we begin? Hello, is my voice audible to all? Please say yes or no. Hello, voice audible or not? Please say yes or no. Yes, sir. Okay, we are going to start. So basically, this course is intended to make you aware about the practical orientation with respect to the highway and allied structures. So what we will be covering through this course is we will be covering basically the 7 principles: bar bending schedule, billing, estimation, execution, tendering, machinery, and quantity surveying. So what we will be doing through this course, I will be taking you through my project which I was doing for the past 4 years. So you will get a complete idea how the things work on the ground. First of all, I would like to give a little bit introduction about myself. I am Vandit. I did my bachelor's as you all guys did uh, in civil engineering. After that, for 1 year, I worked under the client National Highway. And for the past 4 years, I am working for the client Border Roads. I will let you know what is Border Roads in the coming slide. So basically, we will start with the major. Basically, we will give a little bit introduction about the civil and construction engineering. I will come to the point after that. So basically, what are the major fields in the civil engineering? First one is the infrastructure development. So what is infrastructure? Infrastructure is basically the utilities and the structures which are there to facilitate the movement of goods and people from one place to another. So what comes under this category? Highways, railways, inland ports, tunnel, bridges, and airports. Second category is the residential buildings. Residential buildings are the places where we all guys live in. Houses, townships, colonies, this all comes under this. Third category is the commercial, education, and institution buildings. Hospitals, malls, cinema halls, colleges, they come under this and money, like the malls and all, colleges and college building, school building, hall, etc. These all comes under the institution building. Fourth category is the industrial building. In industrial buildings, factories, manufacturing units, these are all buildings. I will jump directly to the highway infrastructure engineering because our course is basically oriented for this purpose. So I will directly come to the major outcome. What are the job opportunities you would be looking for through the highway infrastructure sector? So recently, you guys, if you are gone through, if you are aware through the news, Finance Minister announced rupees 7.5 lakh crore to the infrastructure sector. And infrastructure sector basically covers majority of the portion with respect to the highway sector. Nearly 5% of our country budget is going to be induced for the highway sector in the coming financial year. That's what our finance minister announced. So what does that mean? It means that the increasing number of job opportunities is coming along the highway sector.
either through the client, government agencies, or through the contractors or the consulting. So what are the career options? There are major three of career options. First is the government sector. You can join any government agencies which works for the highway development, like the national highways, CPWD, border roads, and you guys have the different state agencies. Like suppose you are in some state, so they have their own PWDs, their own state highways. So you can guys can join that through your state entrance examination. Second is the private sector. These government agencies, what they do, they employ the contractor and the construction companies to work for them. You can join these contractors, construction companies also. Third is the consultants. If you get a good experience and good working knowledge of a particular field, you can join as a consultant. Consultant means you have to advise the contractor as well as the client both about how the things are going, how about the quality control, about the design. You just have to give the advice and to the both the parties. This is the role of the if you are engaged in the consulting firm. Third category is the self. If you will get a good experience, you can open your own consulting firm. We'll come to the next slide. Farhan, slide is visible to all today? Yes or no? Hello. Yes, sir. It's visible. It's visible to all. No? Yesterday it was not visible. So I will No, sir. directly It's coming to visible the. too. Okay, fine. I will be directly coming to the course content. What we will be doing through this course. So basically, to give you an idea, the best thing is to take a case study. Case study means some project is going on. If we will align these principles to that project, so then only you can get a good picture of the things. So I have taken my project as a case study for you so that you can get an idea how the things work on the ground. So basically what is my project? I was working for the client Border Roads. Border Roads is one of the engineering wings of the Indian Army. It works along the border areas. It works for the development of the highway infrastructure along the border locations of the country. It is divided into two parts: road construction company and the bridge construction company. Road construction company works for the development of the highway. Bridge construction company works for the construction of the bridge. I was under the road construction company. The project was it's still going, nearly around 300 crores. So through this case study, we will be covering both the hill roads and the plain roads. So I will be giving you the picture of the project and what we will be covering. We will be covering these principles through the case study. So what are the principles? First is the contract agreement and tendering. This I will give you in detail in the coming slide. Second is the major division of any highway project. Suppose a highway project is going on. It is divided into two parts: formation cutting and the permanent structures. What is formation cutting? Suppose our highway is going on, so the total width or the right of way, which is to be included under our supervision or the construction, this comes under the formation cutting. अब क्या होता है, अपना जो हाईवे है उसकी जितनी भी हमारा पूरा जो राइट ऑफ वे है इंक्लूडिंग शोल्डर्स एंड फुटपाथ, उसके अंदर में जो भी हमारा कट एंड फिल करना है, कोई भी स्ट्रक्चर आ रहा है, कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन आ रहा है, वो फॉर्मेशन कटिंग कहलाता है ऑफ डिफरेंट प्रोसीजर. एंड प्लेन रोड्स में क्या करते हैं, जैसे हमारे कोई ऑब्स्ट्रक्शन आते हैं, लाइक हमको लैंड एक्विजिशन करना है, कोई विलेज से हमारा जा रहा है, कहीं पे जो हमारा लूज फाउंडेशन है, कहीं पे हमको
बेसिकली जो हमारा राइट ऑफ वे है टोटल, जो हमारी रोड की विड्थ है इंक्लूडिंग द शोल्डर्स एंड द फुटपाथ, उसको भी इंक्लूड करके टोटल जो हमको एक्वायर करना है फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द हाईवे, दिस इज नोन एज द फॉर्मेशन कटिंग. Next is the permanent structures. What are the permanent structures? Permanent structures are the structures which are basically designed along the highway for the support of the highway infrastructure. Permanent structures क्या होता है? First we will take the example of hill roads. अब hill roads में क्या होता है? हमने hill side पे cutting किया है, but हमारा जो पहाड़ है वो unstable है, तो उसको stable करने के लिए हमको hill के along कुछ स्ट्रक्चर बनाना पड़ता है ताकि वो जो मटेरियल है वो हमारा हाईवे पे ना आए. वो स्ट्रक्चर क्या हो सकता है? वो स्ट्रक्चर टो वॉल हो सकता है, बेस्ट वॉल हो सकता है. कहीं कहीं पे जो वैली साइड होता है, वैली साइड पे भी हमको क्या होता है, डिपेंडिंग ऑन द टेरेन, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन, कहीं पे हमको वैली साइड में हार्ड रॉक मिल जाता है. तो टू अचीव द फॉर्मेशन विड्थ हम वहाँ पे रिटेनिंग पैनल, आरी पैनल लगा देते हैं. प्लेन रोड्स में क्या होता है? प्लेन रोड में डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन, सपोज एक आई विल गिव यू एन एग्जांपल, सपोज एक एक्सप्रेस वे जा रहा है, उधर पे कोई विलेज आता है बीच में या कोई सिटी पैसेंजर है, वो डायरेक्ट एक्सप्रेस वे एलिवेटेड रोड पे एम्बैंकमेंट की जरूरत होती है डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन. कहीं कहीं पे हमारी वाटर स्ट्रक्चर्स आ जाती है, वाटर स्ट्रक्चर्स के लिए हम कलवर्ट लगाते हैं, चाहे वो हिल रोड्स हो या प्लेन रोड्स हो. व्हाट इज अ कलवर्ट? कलवर्ट इज अ काइंड ऑफ small bridge up to the length of formation width, and secondly to achieve the formation width is known as the permanent structures. Next is the execution of site in a highway project. अब you are appointed as an engineer, site engineer or other engineer in हाईवे प्रोजेक्ट. सो व्हाट यू विल बी डूइंग, को जो है क्लाइंट क्या है, क्लाइंट आपको ड्राइंग देगा. एक एग्जांपल लेते हैं कि आपको एनालिसिस करनी है, उसके हिसाब से आपको अपना काम कराना है. यू गेट ड्राइंग एनालिसिस, वर्क एग्जीक्यूशन, क्वालिटी कंट्रोल. भाई आपको देखना है जो भी अपना मटेरियल है, जो भी अपनी कास्टिंग हो रही है, वो इज इट गोइंग एज पर द क्वालिटी स्टैंडर्ड्स और नॉट. नेक्स्ट इज द कॉस्ट बेनिफिट ओवररन. दिस इज द मेजर पॉइंट टू कंसीडर. सपोज आपको कॉन्ट्रैक्टर ने एज अ साइट इंजीनियर एक साइट पे अपॉइंट किया है. सो व्हाट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स द कॉन्ट्रैक्टर? आपको इस तरीके से काम करना है कि आपका जो कॉन्ट्रैक्टर है उसको मनी सेव हो जाए. दिस इज नोन एज अ कॉस्ट बेनिफिट ओवररन. वो कैसे हो सकता है? तभी तो वो आपको अपॉइंट करेगा जब उसको कुछ फायदा होगा. सपोज आपको क्वांटिटी सर्वेइंग के थ्रू, क्लाइंट क्वांटिटी सर्वेइंग की भी एक रिपोर्ट होती है, वो क्लाइंट आपको पहले ही दे देता है ड्राइंग की रिपोर्ट्स के साथ. आई विल गिव यू एन एग्जांपल. सपोज आप कलवर्ट ही बना रहे हैं या किसी भी परमानेंट स्ट्रक्चर तो वॉल या रिटेनिंग वॉल के पैनल की फाउंडेशन करा रहे हैं. तो कॉन्ट्रैक्टर क्लाइंट ने आपको जो यूएस की रिपोर्ट दी है उसके हिसाब से आपको पर क्यूबिक मीटर 6 बैग्स ऑफ सीमेंट कंज्यूम करना है. वो हमारा पूरी साइट में रिपोर्ट सेम रहती है. बट आपने अपनी जो साइट देखी, आपने देखा कि मेरे को तो फाउंडेशन में हार्ड रॉक मिल गया है. हार्ड रॉक मिल गया तो इसका मतलब मेरे को ज्यादा सीमेंट लगाने की जरूरत नहीं है. तो आपने जजमेंट लिया कि मैं 2 बैग्स में अच्छी क्वालिटी अचीव हो सकती है. आपने 2 बैग्स में ऑफ सीमेंट यूज करके 4 बैग सेव कर दिए. I have given you one example. There are plenty of ways to achieve this. So this is the cost benefit, how to achieve the cost benefit overrun. Next is the machinery involved. Basically, our highway engineering revolves around the machinery. हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर में और बिल्डिंग में मेजर यही डिफरेंस है कि हाईवे में अपना मशीनरी का यूज ज्यादा है और बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में मैन पावर का यूज ज्यादा है.
मशीनरी का मशीनरी का अगले स्लाइड्स में कवर है। हेलो, कोई कुछ कह रहा है? हेलो, कोई कुछ कह रहा है? हेलो, एनीबडी सेइंग समथिंग प्लीज? वॉइस इज ऑडिबल ना टू ऑल? ओके, लेट्स कंक्लूड फर्दर. Next is the basic and quantity serving. So what is basic serving? Basic serving basically आपका जो सर्विंग करते हैं, qualitative serving, to get the alignment of the road and the other principles, this comes under the basic serving. आप अपने कॉलेज में पढ़ा होगा आपने 1 ईयर का बेसिक सर्विंग, उसमें हम डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स यूज करते थे, प्लेन टेबल सर्वे, थियोडोलाइट, पिच एंड ऑल. But in ground, we only use one instrument, that is the total station. Total station is one of the best instruments to achieve our purpose. Moreover, it's user friendly and accuracy is very good. ये total station के बारे में भी हम next slide में पढ़ेंगे, वो है. Next is the quantity serving. Quantity serving means you have to get an idea about how much quantity of the materials is to be used in the site. This is known as the quantity serving. मैं कलवर्ट का एग्जांपल लेता हूँ. कलवर्ट आपका बन रहा है, तो आपको इतना एज अ क्वांटिटी सर्वेयर इतना आइडिया हो जाना चाहिए विद द हेल्प ऑफ द ड्राइंग्स एंड द क्यूएस कि हमारा इस कलवर्ट, सपोज हमारा कलवर्ट का लेंथ, विड्थ और स्पैन हमको पहले से ही पता रहता है, जो क्लाइंट बताता है कि हमारे इस कलवर्ट में इतने बैग्स ऑफ सीमेंट लगेंगे, इतना क्यूबिक मीटर ऑफ सैंड लगने वाला है, इतना स्टील विद द हेल्प ऑफ बीबीसी कंज्यूम होने वाला है, बीबीएस कंज्यूम होने वाला है. तो हम लोगों को ये आइडिया पहले ही लग जाना चाहिए ताकि हम जितना भी मटेरियल है वो प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट से पहले ही प्रोक्योर कर लें और वो हम अपना साइट पे डंप कर दें ताकि हमारा काम हैम्पर ना हो. तो पहला रोल तो क्वांटिटी सर्वेयर का ये होता है. दूसरा उसका होता है तो जब बिलिंग होता है उसमें भी उसका ही विल बी देयर फॉर द मेजरमेंट कि हमारा जितना भी काम हुआ है उसका प्रॉपर मेजरमेंट जो है रिकॉर्ड बुक में हो जाए ताकि हमको जितना अपने काम किया है उसका पैसा मिल जाए. We will get you in detail later on. Next is the bar bending schedule. हमको ये काम करवाना है. गवर्नमेंट एजेंसीज कोई भी हो सकती है, हाईवे में नेशनल हाईवे, CPWD, बॉर्डर रोड्स, स्टेट एजेंसीज हो सकती हैं. फिर उसके बाद डिफरेंट कॉन्ट्रैक्टर्स कम्पीट फॉर द बिड. जिसका सबसे लो कॉस्ट में और अच्छा एक्सपीरियंस वाला कॉन्ट्रैक्टर होता है उसको कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है. फिर कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट साइन हो जाता है इन बिटवीन क्लाइंट एंड कॉन्ट्रैक्टर. तो सेकंड पार्टी इज द कॉन्ट्रैक्टर विच इज वर्किंग फॉर द क्लाइंट. थर्ड पार्टी इज द सब कॉन्ट्रैक्टर. अब क्या होता है, हमारा सपोज 40 किलोमीटर का स्ट्रेच मिला है किसी कॉन्ट्रैक्टर को, उसके अंदर 30 साइट्स पे काम हो रहा है. वही कहीं पे हमारा आरी पैनल लग रहा है, कहीं पे कन्वर्ट बन रहा है, कहीं पे हमारी फॉर्मेशन कटिंग चल रही है, बहुत सारा काम है. इतना वो कॉन्ट्रैक्टर और कॉन्ट्रैक्टर का आदमी इतना हम हैंडल नहीं कर सकते. सो व्हाट contractor will do, he will give the work to further contractors, small contractors. This is known as subcontracting. जैसे ही हमारा क्लाइंट और कॉन्ट्रैक्टर के बीच में रिलेशन था वैसे ही हमारा कॉन्ट्रैक्टर और सब कॉन्ट्रैक्टर के बीच में रिलेशन होगा. ये भी एक परफॉर्मा और कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट के थ्रू होता है, रेट्स वगैरह सब डिसाइडेड होता है. तो दिस इज नोन एज द सब कॉन्ट्रैक्टिंग. तो अब बिलिंग होगी हमारी दो तरह की. एक तो हमारी क्लाइंट बिलिंग होगी, दूसरी होगी सब कॉन्ट्रैक्टिंग बिलिंग. जो भी हम काम कर रहे हैं, जिसका हमको पैसा लेना है, जो भी काम हुआ है, सपोज 1 महीने में बिलिंग हो रही है, जितना भी हमने काम किया है उसका पैसा लेना है क्लाइंट से, तो उसको बोलते हैं क्लाइंट बिलिंग. और जितना पैसा हमारे अंदर जो कॉन्ट्रैक्टर्स ने किया है उनको हमको देना है, दैट इज नोन एज द सब कॉन्ट्रैक्टर बिलिंग. नेक्स्ट द कॉस्ट बेनिफिट ओवरऑल. ये मैंने आपको बता ही दिया है. एस्टिमेशन. एस्टिमेशन तो हम लगा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द मटेरियल्स, लेबर टाइप पे. दिस कम्स अंडर द प्लानिंग. एस्टिमेशन सर ये पीबीसी बिल बताएंगे क्या सर? हाँ जी सर. सर ये प्राइस वेरिएशन के बारे में भी ऐड करेंगे सर क्या? प्राइस वेरिएशन जो रहता है, प्राइस वेरिएशन का यार जब हम कोर्स करेंगे उसमें ऐड रहेगा. मतलब इसमें रहेगा ना मैं ऐड? आपको थोड़ा
हाँ ऐड रहेगा इसका, बहुत डीपली बताऊंगा मैं इसको थोड़ा। अभी पहले हम स्लाइड खत्म कर लेते हैं, इसके बारे में कुछ बताऊंगा मैं डीपली ना। ठीक है सर। प्राइस वेरिएशन का बेसिकली होता क्या है मैं बताता हूँ थोड़ा सा। हम्म, दो तीन तरह का होता है। सपोज आपने टेंडर हुआ 2 साल का, मैं एक एग्जांपल देता हूँ, थोड़ा आप समझने की कोशिश करना, थोड़ा सा डिफिकल्ट है। ठीक सपोज है ठीक हमारा है। टेंडर हुआ, कोशिश करना समझने की। सपोज हमारा क्लाइंट ने कॉन्ट्रैक्टर को टेंडर दिया 2 इयर्स में भाई आपका काम हो जाना चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट में लिखा है। अब क्या जी सर। होता है, ड्यू टू सर्टेन अनअवॉइडेबल कंडीशन कॉन्ट्रैक्टर वो 2 साल में कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं कर पा रहा है, काम बचा हुआ है अभी भी। अब भाई काम तो करना ही है, जी सर। तो 2 साल के अंदर में जो भी हमारे मटेरियल की रेट थे, लेबर के रेट थे, वो तो इंक्रीज होगा ही ना, क्योंकि मार्केट रेट तो बढ़ रहा है। तो रेट हमारा जी विद सर। द ईयर इंक्रीज होता रहता है। ये मैंने आपको एक एग्जांपल दिया है कॉस्ट वेरिएशन में। इसका एक फॉर्मूला होता है अलग अलग क्लाइंट्स के हिसाब से, उस हिसाब से हम कैलकुलेशन करते हैं। इसका जो बिल बनता है वो भी अलग बनता है। जैसे हम जी लोग काम करते थे वहां पे हमारा एक नॉर्मल बिल बनता था, एक बनता था एस्केलेशन बिल। वो जी सर। एस्केलेशन बिल होता है बेसिकली प्राइस वेरिएशन। जब हम डिटेल में जाएंगे मैं आपको बताऊंगा। ठीक है सर। एक रफ आइडिया दिया अभी मैंने। फिर एक एस्टिमेशन का तो आपको एस्टिमेट करना है विद द हेल्प ऑफ द मटेरियल्स और प्राइसिंग, ये कर सकते हैं। नेक्स्ट इज द पेपर वर्क डाटा हैंडलिंग कॉरेस्पॉन्डेंस बिल। अब क्या होता है, डेली आपको पेपर वर्क मेंटेन करना पड़ता है प्रोजेक्ट में, कि इतना काम चल रहा है, रोज क्या क्या काम हो। इसके लिए अलग अलग डिपार्टमेंट्स की अलग अलग होती है। जैसे हम लोगों के पास तो वर्क डायरी होती थी, बॉर्डर रोड्स में, नेशनल हाईवे में भी वर्क डायरी होती है। डायरी होती है, उसमें पूरा डिटेल होता है, भाई कितनी लेबर कौन सी साइड में यूज हुई, नंबर ऑफ लेबर, मशीनरी की पूरी डिटेल्स होगी। वो जब हम पढ़ेंगे, मैं आपको वर्क डायरी का एक पेज अवेलेबल कराऊंगा, तब आपको आइडिया होगा। उस वर्क डायरी में डेली मेंशन करना पड़ता है। जैसे हमारी हाईवे क्या चलता है, चेनेज के हिसाब से चलता है। अब भाई डेली पता तो होना चाहिए क्या काम किया है। तो सपोज आपके 40 किलोमीटर का स्ट्रेच है, उसको हमने 10 किलोमीटर में डिवाइड कर देते हैं, और हर 10 किलोमीटर को एक बंदा देख रहा है। उस बंदे के पास वर्क डायरी रहेगी, वो अपने 10 किलोमीटर में लिखेगा, अच्छा चेनेज 1.25 पे कलवर्ट का इतना काम हुआ, कलवर्ट की फाउंडेशन है, उसने ऐसा नोट बना दिया। चेनेज 4.0 में हमने सब कॉन्ट्रैक्टिंग का ये काम हो रहा है, रिटेनिंग वॉल की आज हमारा पैनल बना है, इतनी हाइट का बना है, वो नोट कर दिया। चेनेज 6 समथिंग में हमारा फॉर्मेशन कटिंग चल रही है, जो हमारी 2 मशीनरी है, 2 एक्सकेवेटर है, वो सब ग्रेड बनाने में एंगेज है, इतने घंटे वो चले, वो सब लिखना पड़ता है। दिस इज नोन पेपर वर्क। ये डेली भरा जाएगा, ठीक है। और क्या होता है, इसकी चल रहा है, वो पूरा इतनी मैन पावर लग रही है, तो डेली हमें जो हमारा प्रोजेक्ट मैनेजर है, प्लानिंग इंजीनियर है, डेली शाम को बैठ के ये निकालता है कि आज दिन भर भी जो काम हुआ है वो प्रॉफिट में हुआ है कि लॉस में हुआ है। तो ये पेपर की जो भी हमारी वर्क डायरी है उसके हिसाब से पता लगता है। नेक्स्ट इज द डाटा हैंडलिंग। अब बहुत सारा काम चल रहा है, मान लीजिए 300 करोड़ का प्रोजेक्ट चल रहा है, 40 किलोमीटर की लेंथ है, 25-30 साइटें चल रही है। तो डेटा तो आपके पास होना चाहिए, डेटा का रिकॉर्ड होना चाहिए। लाइक एक तो वर्क डायरी के थ्रू हुआ, और एक अपनी डायरी भी रखनी रखते हैं, डिफरेंट इंजीनियर सब कॉन्ट्रैक्टर भी रखते हैं, वो चला है, कितना उसने काम किया है, प्रॉपर रिकॉर्ड होना चाहिए कि भाई एक दिन की में क्या क्या क्लाइंट के बंदे आते हैं, उनके जीए आते हैं। जैसे फोर्सेज में क्या होता है, फोर्सेज में जैसे बॉर्डर रोड्स में हमारे आर्मी के ऑफिशियल्स आते थे, 2-2 3 दिन बाद, कमांडर है, ऑफिसर इंचार्ज है, ऑफिसर कमांडिंग, तो वो आके हमसे पूछते थे भाई तुम्हारा क्या है, कितना काम किया है। ये तो वर्बली हुआ।
उनकी तरफ से रिटर्न कॉरेस्पॉन्डेंस भी आता है। नेशनल हाईवे में भी ऐसे ही होता है, रिटर्न कॉरेस्पॉन्डेंस प्रोजेक्ट मैनेजर के नाम से आता है, रिटर्न लेटर 10-15 दिन में, कि ये जो है इस लोकेशन में, इस कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट में इतनी लेंथ पे ये जो काम चल रहा है, सेटिंग कितने दिन में हो जाएगी, अपने प्रोग्रेस रिपोर्ट दो, और जो आपने कलवर्ट बनाया है या जो भी है, पूरा एक प्रॉपर कॉरेस्पॉन्डेंस चलता रहता है। इट्स अ फॉर्मल कॉरेस्पॉन्डेंस क्लाइंट के और कॉन्ट्रैक्टर के, प्रोजेक्ट मैनेजर के बीच में। और फिर हमारा भी चलता है सब कॉन्ट्रैक्टर्स के साथ, वो वर्बली हो जाता है। नेक्स्ट इज द बिल। बिल के साथ ये सब जाता है, वर्क डायरी, पेपर वर्क, सीमेंट बिल्स। बिलिंग के साथ हमारा पूरा एक डिपार्टमेंट होता है, उसके साथ बहुत सारी चीजें लगती है, तब हमारा बिल प्रोसेस होता है। आई विल गेट यू इन डिटेल। हाँ, 2 चीजें हम अभी डिटेल में पढ़ेंगे, टेंडरिंग एग्रीमेंट, बीबीएस और मशीनरी। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टेंडरिंग एंड कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट, इसका बीच में डिफरेंस समझिए। Formal invitation to trade under certain terms and conditions is called the tender, like bill of quantities, quotations, types of machinery and manpower to be included, procedure of work, subcontracting terms, disposal of surplus material at allocated sites, measurement and quality of work and many more. अब क्या होता है, I will give you an example. Suppose हमारे अलग अलग मंत्रालय होते हैं, मिनिस्ट्रीज होती है। सपोज बॉर्डर रोड्स कम्स अंडर द डिफेंस मिनिस्ट्री। डिफेंस मिनिस्ट्री को लगा कि हमको चाइना बॉर्डर है, सपोज लेह लद्दाख का ही पकड़ लीजिए, उत्तराखंड वाला जहाँ मैं काम कर रहा था, लिपुलेख वाला, उनको लगा कि हमको 40 किलोमीटर की भाई हमको एक सड़क बनानी चाहिए फॉर द डिफेंस पर्पसेस। मिनिस्टर्स लोगों के दिमाग में आया, तो दे विल टेल टू द चीफ एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ऑफ द कंसर्न डिपार्टमेंट। बॉर्डर रोड में उन्होंने ब्रिगेडियर जनरल को कहा कि यू फ्लोट द टेंडर, वी वांट टू मेक अ रोड देयर। So brigadier general or the chief engineer, suppose national highway में chief engineer है, he will make a tender. So what is tender? Tender में वो एक open invitation देगा, जो भी उनकी selected contractor से जो पहले से ही काम करते आ रहे हैं। टेंडर भी 3-4 तरह के होते हैं, एक ओपन टेंडर होता है, क्लोज टेंडर होता है, सब क्लोज होता है। डिफेंस में अपना क्लोज टेंडर होता है ज्यादातर, इवन नेशनल हाईवे में भी क्लोज टेंडर होता है। क्लोज टेंडर्स मीन्स कि अपने जो भी कॉन्ट्रैक्टर पहले से काम कर रहे हैं उनकी एक लिस्ट होती है, तो जो उन्हीं के सर्कल में जो है हमारा टेंडर फ्लोट होगा, कोई ओपन मार्केट से कोई आएगा नहीं, क्योंकि जो हमारे साथ पहले से काम कर रहे हैं दे आर फेथफुल एंड वी नो दे आर एक्सपीरियंस वन। तो सपोज हमारे 50 कॉन्ट्रैक्टर हैं बॉर्डर रोड्स में लिस्टेड, क्लास एस कॉन्ट्रैक्टर से बड़ा हमने टेंडर फ्लोट किया है। तो अपना जो चीफ इंजीनियर है वो टेंडर फ्लोट करेगा, टेंडर में वो क्या क्या लिखेगा, उसको पता है कि मेरा 40 किलोमीटर का स्ट्रेच बनना है, तो उसमें वो उसको बताएगा नेचर ऑफ वर्क क्या क्या होगा। सपोज हमारी फॉर्मेशन कटिंग है, पहले 5 मीटर की है, हमको उसको 12 मीटर करना है, तो वो लिखेगा कि फॉर्मेशन कटिंग हमको 7 मीटर और काटना है। तो उसमें वो पहले ही अपने जो उनके थर्ड पार्टी से सर्वे करा देगा कि उसमें कितने हमारी क्वांटिटी आ सकती है। सपोज वो कहता है हार्ड रॉक की हमको 70,000 क्यूबिक मीटर क्वांटिटी, एक रफ आइडिया है, उसमें हमारे आ सकती है। फिर उसमें वो टेंडर में और भी चीजें लिखेगा, या कलवर्ट बनने हैं, कितने कलवर्ट आएंगे उस लेंथ में, नंबर ऑफ कलवर्ट, या कितने आरी पैनल आएंगे। ये थर्ड पार्टी सर्वे पहले हो जाता है बिफोर टेंडर। कितनी मशीनरी इन्वॉल्व करेगा, कौन कौन सी मशीनरी करनी चाहिए, मैन पावर क्या क्या रखनी चाहिए, कितने हमारे स्किल्ड स्टाफ, कितना अनस्किल्ड स्टाफ होना चाहिए, प्रोसीजर ऑफ वर्क, किस तरीके से हमको काम को करना है, लाइक कटिंग करनी है, कटिंग हम किस प्रोसीजर से करेंगे, ब्लास्टिंग से करेंगे, रॉक ब्रेकर लगाएंगे, या कलवर्ट बनाना है तो कलवर्ट के लिए हम जो डिजाइन है वो डिजाइन भी वो प्री डिसाइडेड होता है कि हमको कितने स्पैन का कलवर्ट बनाना है, किस तरीके से कितना स्टील लगाना है। ये सब प्रोसीजर ऑफ वर्क को पहले से डिसाइड कर लेती है कमेटी। सब कॉन्ट्रैक्टिंग टर्म्स, जो कॉन्ट्रैक्टर सब कॉन्ट्रैक्टर को काम देगा उसकी क्या क्या शर्तें होंगी, ये थोड़ी है अपनी मर्जी से कुछ भी लिख दिया। सरप्लस मटेरियल है, कोई भी जैसे हाईवे चल रहा है, कुछ भी काम है, तो जो उसका सरप्लस मटेरियल है, एक्सकेवेटेड मटेरियल है, वो एक एलोकेटेड लोकेशंस पे हमको डंप करना है ताकि ट्रैफिक हैम्पर ना हो। ये सब चीजें वो फ्लोट कर देगा।
अंडर में चीफ इंजीनियर। बेसिकली वो क्या करेगा, डिफरेंट आइटम्स ऑफ वर्क होते हैं, लाइक कलवर्ट के लिए हमको पीसीसी करनी है, उसका रेशियो 1:4 है, 1:3:6, 1:3:6 है, अलग अलग जगह के लिए अलग अलग है। या हमको जो आरी पैनल है, ब्रिक्स के थ्रू जो मैशनरी करनी है, उसमें जो क्या रेशियो है, तो वो सब पहले से डिसाइडेड होगा। तो वो क्या करता है, एक लिस्ट बना लेता है, उसमें हमारा आइटम ऑफ वर्क होता है, तो वो फ्लोट कर देता है टेंडर। अब क्या होता है, जितने भी हमारे डिस्टर्बेंस हो रहा है, तो जितने भी हमारे कॉन्ट्रैक्टर्स हैं वो रेट कोट करेंगे, सपोज पर क्यूबिक मीटर के हिसाब से। सपोज एक कॉन्ट्रैक्टर ने करा है कि मैं भाई पीसीसी 1:2:4 करना है, मैं 500 रुपए 500 रुपीज पर मीटर क्यूब में कर दूंगा। दूसरे कॉन्ट्रैक्टर ने कहा कि नहीं, मैं तो 400 रुपीज में कर दूंगा। ऐसी सब अपनी अपनी कोर्स डाल देते हैं। फिर बाद में टेंडर उसको मिलता है जिसका कोर्स सबसे कम होता है, जो सबसे कम पैसे में काम करना चाहेगा, और जो सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस होगा उसको हम टेंडर दे देते हैं क्लाइंट। सो अब ये तो कंफर्म हो गया कि टेंडर किसको मिलना है। तो अब कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट इस टाइम यूज इवेंट पढ़ते हैं, वैसे ही हम लोगों के पास भी कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट था, बहुत मोटे से इसमें सब चीजें लिखी होती है कि नेचर ऑफ वर्क क्या होगा, मैन पावर कैसे यूज करनी है, मेजरमेंट किस तरह से होगा, पूरी जो शर्तें हैं वो लिखनी पड़ती है। अब क्या होता है, वो एक लीगल एग्रीमेंट है। कल के दिन कुछ जो भी पार्टी डिफर करती है, चाहे क्लाइंट या कॉन्ट्रैक्टर, तो दे बोथ कैन लाइजन एंड गो टू द कोर्ट फॉर क्लेम्स। किसी में शेड्यूल का यूज आता है फाउंडेशन में और वन स्लैब में। वो भी जैसे कलवर्ट है, कलवर्ट की हमको फाउंडेशन करानी है, तो ऊपर जो स्लैब पड़ता है वहाँ अपना स्टील का यूज होता है। या कहीं अपना आरी पैनल की फाउंडेशन करानी है, कहीं वेस्ट वॉल की फाउंडेशन करानी है, कहीं अपना अंडर पास है उसके ऊपर स्लैब डालना है, वहाँ पे उसका यूज आता है। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में स्टील का यूज बहुत ज्यादा होता है। So I will give you an overview. What is DBS? DBS describes the particular of bars, shape of bars, their length and number, which will finally give a total weight of the different particular bars to be procured. अब जितने भी हमारा हमें जितने भी क्या नाम है, जैसे हमें फाउंडेशन में कितना हमें स्टील यूज करना है, उसमें कितने टाइप ऑफ स्टील यूज होंगे, पर्टिकुलर ऑफ बार्स, कितने कितने डाया के यूज होंगे, उनकी क्या क्या शेप होगी, लाइक क्रैंक होगा, फोल्डेड होगा, स्ट्रेट होगा, उनकी क्या क्या लेंथ है, उनके क्या क्या नंबर्स हैं। इन सबकी फाइनल कैलकुलेशन करके एक स्ट्रक्चर के लिए जो टोटल वेट निकलता है, दिस इज नोन एज द बार बेंडिंग शेड्यूल। अब वाई बार बेंडिंग शेड्यूल की हमें जरूरत क्या है? बार बेंडिंग शेड्यूल इज बेसिकली अ पार्ट ऑफ क्वांटिटी सर्वेइंग। जैसे क्वांटिटी सर्वेयर को ये आइडिया लगाना है कि हमको सपोज एक कलवर्ट बनना है या एक आरी पैनल बनना है, उसको पहले ये आइडिया हो जाना चाहिए कि भाई इस स्ट्रक्चर को बनने में मेरा इतने मैग्स ऑफ सीमेंट यूज होना है, ऐसी उसको इतना आइडिया हो जाना चाहिए कि इतने केजी ऑफ या इतने टन ऑफ स्टील हमें जरूरत है इस एंटायर कलवर्ट की फाउंडेशन में और स्लैब में, ताकि हम जो भी मटेरियल है वो प्रोक्यूरमेंट डिपार्टमेंट से मंगा के साइड पे पहले ही डन कर दें। व्हाट इज प्रोक्यूरमेंट डिपार्टमेंट? प्रोक्यूरमेंट डिपार्टमेंट वो होता है जो भी आपका मटेरियल परचेज करता है ओपन मार्केट से। अब बीबीएस की जरूरत तभी है, इसलिए है ताकि हमारा काम जो है हैम्पर ना हो, हम सारा मटेरियल पहले से ही हमको पता लग जाए कितना स्टील भाई स्ट्रक्चर में यूज होने वाला है। तो आई विल गिव यू एन आइडिया हाउ टू कैलकुलेट दैट यूज ऑफ स्टील इन हाईवे स्ट्रक्चर, मोस्टली इन फाउंडेशन एंड स्लैब। एक फिगर है आपके सामने, वो दिख रहा है, इज इट विजिबल? आई थिंक इट्स विजिबल। सो मैंने एक एग्जांपल लिया है
Suppose for a loose soil foundation of size 1500 mm into 2000 mm, steel of dia 12 mm RF is to be used. हमारी एक फाउंडेशन करनी है हमको, कलवट की ले लेते हैं या कोई आरी पैनल के ले लेते हैं, अंडर पास की ले लेते हैं. एक एग्जांपल है, उसकी लेंथ और विड्थ है 1500 mm into 2000 mm. इसमें हमको स्टील लगाना है. इसमें हमको कैलकुलेट करना है कि भाई हमारा टोटल वेट ऑफ द स्टील कितना यूज होगा. दिस इज नोन एज द बार बेंडिंग शेड्यूल. अब बार बेंडिंग शेड्यूल का जो डिजाइन है वो देता है हमको कॉन्ट्रैक्टर पहले से ही. वो डिजाइन दे देगा, ड्राइंग दे देगा. जैसे हमारी स्ट्रक्चर्स की ड्राइंग देता है वैसे ही बार बेंडिंग शेड्यूल की ड्राइंग भी वो प्रोवाइड करता है. क्वांटिटी सर्वेइंग की रिपोर्ट भी वो प्रोवाइड करता है. हमको बस काम कराना है. तो ये ड्राइंग सपोज उसने दी है. इस ड्राइंग में क्या है, क्लियर कवर 50 mm. अब व्हाट इज क्लियर कवर? क्लियर कवर हमारी लेंथ और विड्थ के अलोंग जो हम स्पेस छोड़ते हैं along the steel wire mesh, this is known as the clear cover. Why we leave the space हम इसलिए छोड़ते हैं ताकि हमारी एक इफेक्टिव जो है बॉन्डेज बन जाए स्ट्रक्चर में, स्टील में और कंक्रीट में. दिस इज द रीजन व्हाई वी लीव क्लियर कवर. अब इस डायग्राम में देखेंगे आप, स्पेसिंग जो हमारी प्री डिफाइंड है वो है 150 mm. तो क्लियर कवर है 50 mm. डाया हम यूज कर रहे हैं 12 mm एट द रेट 150 mm सेंटर टू सेंटर. अब हम लेंथ देखेंगे. अब एक स्टील को पकड़ लिया आपने, एक स्टील को देखना, एक ही स्टील की बात हो रही है. टोटल लेंथ ऑफ अ स्टील 1500 माइनस, अब 50 mm हमारा दोनों साइड से कवर में चला गया. टोटल लेंथ ऑफ स्टील इज इक्वल टू 1500 माइनस 100 इज इक्वल टू 1400 mm. टोटल विड्थ ऑफ वन स्टील बार 2000 माइनस 100 mm 1900 mm. अब बेंडिंग लेंथ करना है. अब हमने लेंथ और विड्थ तो हमने पता लग गया कितना है, बट इन लेंथ और विड्थ को हमको आपस में भी तो कनेक्ट करना है ताकि इनके बीच में एक प्रॉपर बॉन्डिंग आए. दिस इज नोन एज द बॉन्डिंग लेंथ. अब इसको आपस में बेंड लेंथ करके बेंडिंग वायर से बांध देते हैं 3000 mm 4000 mm. तो हम 6 इंचेस का बेंडिंग लेंथ प्रोवाइड कर देते हैं टुवर्ड्स द लेंथ एंड द विड्थ साइड दोनों तरफ, और उसको फिर बांध देते हैं. 6 इंचेस मीन 150 mm. तो टोटल लेंथ ऑफ वन बार इंक्लूडिंग ओवरलैपिंग स्टील 1400 plus 2 into 150 1700 mm. Total width including overlapping steel is equal to 1900 plus 2 into 150 2200 mm. अब हमारा जो बेंड हो रहा है 90 डिग्री पे, उसके कारण थोड़ा हमारा स्टील वेस्ट भी होगा. इसको आप विजुअली इमेजिन करो ये चीजों को ना, तब क्लियर होगा. तो वो बेंड डिडक्शन होता है 2 into twice of 2 डाया. सो हमारी फाइनल कटिंग लेंथ ऑफ वन बार 1700 minus 2 into 12 1676 mm. कटिंग विड्थ 2176 आ जाएगी. अब मेन पॉइंट इसमें समझने का ये है, नंबर ऑफ बार लेंथ वाइज. अगर आप लेंथ को देखोगे ध्यान से, इमेजिन करो इस फिगर को देखो, लेंथ को देखो जहाँ 1500 लिखा है 1500 mm. तो जब हम नंबर ऑफ बार निकालेंगे इसमें तो हमें विड्थ के अलोंग देखना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम लेंथ के लिए निकाल रहे हैं तो हमारे बार को हमें विड्थ के अलोंग देखना पड़ेगा. इसे ये समझ में आ रहा है लोगों को कि ऐसा क्यों हो रहा है? थोड़ा सोचने का वो है, थोड़ा सा इसको विजुअली इमेजिन करना. हम 1500 लेंथ के कॉरस्पॉन्डिंग हमको नंबर ऑफ बार्स निकालना है, तो ये हम विड्थ के अलोंग देखेंगे. अगर समझ में नहीं आएगा तो मैं दोबारा बताऊंगा. तो नंबर ऑफ बार लेंथ बाय स्पेसिंग रिपीट सर, रिपीट. हाँ यार, ये समझने वाला इशू है ना. जैसे हम लेंथ के अलोंग हमको निकालना है नंबर ऑफ बार्स कितने कंज्यूम हो रहे हैं, तो इसके लिए हम अलोंग द विड्थ देखेंगे. वाई? इसको आपको विजुअली इमेजिन करना पड़ेगा. अभी आपको अगर कर्सर का एरो दिख रहा होगा, क्योंकि जब हम जो हमारे बार्स हमारे जो अरेंज है लेंथ वाइज, अगर उसकी हम काउंटिंग करेंगे तो हमको विड्थ की तरफ देखना होगा नंबर ऑफ बार्स के लिए. थोड़ा आपको विजुअली इमेजिन करना पड़ेगा ये चीज.
इसमें समझने की बात बार बेंडिंग शेड्यूल में बस यही है जो मैं ये बता रहा हूँ। और जब हम विड्थ के अलोंग काउंट करेंगे नंबर ऑफ बार, तो हमें लेंथ वाइज करना पड़ेगा। सो नंबर ऑफ बार लेंथ बाय स्पेसिंग प्लस 1, 1500 by 150 plus 1, 11. Number of bar width wise 2000 by 150 plus 1, that is 14. Total bar लेंथ वाइज, अब कटिंग लेंथ 1 बार की हमने निकाल दी थी, इनटू नंबर ऑफ बार्स निकाल दिया, उसका मल्टीप्लाई किया। टोटल बार लेंथ हमारी लेंथ वाइज हमको 19 मीटर चाहिए। टोटल बार लेंथ विड्थ वाइज सिमिलरली 31 मीटर होगी। टोटल लेंथ हमारी होगी 50 मीटर। अब सबको पता है वेट पर यूनिट मीटर लेंथ का फॉर्म होगा d स्क्वायर बाय 162.2। यहाँ पे d12 mm है, तो 144 बाय 162.852। तो टोटल वेट कितना होगा हमारा, टोटल लेंथ इनटू पर यूनिट मीटर लेंथ से मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट इज 42.6 kg आ जाएगा। अगर ये समझ में आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, वंस वी विल ज्वाइन द कोर्स ना, हम डीपली पढ़ेंगे चीजों को। आज तो एक ओवरव्यू है। नेक्स्ट इज द साइट एग्जीक्यूशन। तो इसका एक आपको वीडियो दिखाता हूँ। हिल रोड्स में फॉर्मेशन कटिंग क्या बोलते हैं, कैसे होती है, इसका आपको एक आइडिया मिलेगा। आई विल प्ले अ वीडियो। ये मेरे प्रोजेक्ट का वीडियो है। ये हाइड्रोलिक एक्सकेवेटर लगा हुआ है, अभी ऊपर ब्लास्टिंग हुई है, तो जितना भी एक्सकेवेटेड मटेरियल है उसको क्लियर ऑफ कर रहा है, नीचे वैली में डाल रहा है। इसी को फॉर्मेशन कटिंग बोलते हैं। हिल रोड्स में पहाड़ को काट के जो सरप्लस मटेरियल है तो क्लियर ऑफ करना है, इसको बोलते हैं फॉर्मेशन कटिंग। ये मेरे प्रोजेक्ट का ही वीडियो है। और अपना प्लेन रोड्स में भी ऐसे ही होता है। जितना भी अपना लैंड एक्वायर करना है, जो भी टेरेन है कट एंड फिल करना है, जितनी भी हमारी फॉर्मेशन विड्थ है उसको अचीव करने के लिए जो भी एक्टिविटी होती है उसको कहते हैं फॉर्मेशन कटिंग। एक और वीडियो है, ये भी सेम ही है। ये अपना एक्सकेवेटर हो रहा है कोमात्सु 210। ये अपना जो भी सरप्लस मटेरियल है उसको हटा रहा है टू अचीव द फॉर्मेशन कटिंग। नेक्स्ट इज द परमानेंट स्ट्रक्चर। अब परमानेंट स्ट्रक्चर क्या क्या आते हैं, हिल रोड प्लेन रोड से वहाँ पे कलवर्ट आता है। व्हाट इज अ कलवर्ट, जो आप फिगर में देख रहे हैं, कलवर्ट इज अ काइंड ऑफ स्मॉल ब्रिज अप टू द लेंथ 6 to 7 मीटर, and depending on the quantity of the water we decide the clear span। अगर क्वांटिटी ऑफ द वाटर, कोई अच्छा वाटर सोर्स है, हैवी वाटर सोर्स है, तो हम क्लियर स्पैन ज्यादा रखते हैं। वाटर सोर्स कम है तो क्लियर स्पैन कम रखते हैं। क्लियर स्पैन में व्हाट इज क्लियर स्पैन, क्लियर स्पैन इज द ओपनिंग फॉर द वाटर फ्लो। we'll get you in detail once we will go into the course। तो वॉल पैनल, रिटेनिंग वॉल पैनल। अब हिल रोड्स में जो भी हमारा along the hill side, जो हम एक स्लोप वॉल along the slope to retain the backfill, जो हिल साइड पे बनाते हैं, दिस नोन एज टो वॉल। और टुवर्ड्स द वैली साइड टू रिटेन द backfill और द अदर स्लाइडिंग स्ट्रक्चर, दिस इज नोन एज द रिटेनिंग वॉल पैनल। अब ये क्या करते हैं बेसिकली, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। अगर हमारा पीछे का जो टेरेन है, बैकफिल है, वो अनस्टेबल है, तो हम जो ये डिजाइन करते हैं पैनल को, वो स्ट्रेट वॉल नहीं होगी, वो हमेशा इट विल बी इंक्लाइंड एट अ सर्टेन एंगल डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द टेरेन। और वे भी एक ही पैनल में दिख रहा है आपको फिगर में, बट अलग अलग पैनल में होता है, थोड़ा थोड़ा वो छोड़ के, गैप छोड़ के। वाई वी लीव द गैप, अलग अलग फ्रेम्स में होता है ये। लाइक एक हमने 2 मीटर हाइट का एक फ्रेम लिया, उसके बाद हमने 45 डिग्री पे लिया, उसके बाद उसके ऊपर हम डिस्टेंस छोड़ देते हैं, फिर अगली जो पैनल बनाते हैं 50 सेंटीमीटर छोड़ के अलग 4 मीटर का उठाया। हम ऐसा क्यों करते हैं, ताकि हमारा जो जितना भी हमारा एक अच्छा स्टेबिलिटी आने के लिए इस तरीके से डिजाइन करते हैं, ताकि हमारा जितना भी पीछे का जो मटेरियल है वो अपना हाईवे पे ना आए।
ये टोवल हो गया, रिटेनिंग पैनल भी ऐसा ही होता है। और प्लेन रोड्स में या कहीं अगर ऐसी स्ट्रक्चर है जहाँ पे हमको कोई बैकफिल नहीं आ रहा है, तो हम सीधा स्ट्रेट वॉल भी लगा सकते हैं, लाइक द अंडरपास और ऑल। जो अंडरपास होता है, मान लो सिटी सिटी एंटर कर रही है, तो वहाँ पे जो आरी पैनल है वो सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड खड़ा कर सकते हैं। फिर क्या होता है, एम्बैकमेंट होता है, एलिवेटेड रोड है, वहाँ पे हमको एम्बैकमेंट बनाना पड़ता है टू स्टेबलाइज द अर्थ। उसको करने के लिए उसमें भी हम आरी पैनल का यूज करते हैं। डिफरेंट काइंड ऑफ स्ट्रक्चर आर देयर। नेक्स्ट इज द मशीनरी। अब बेसिक जो रोल है हाईवे इंजीनियरिंग में वो मशीनरी का है। तो देयर आर टू काइंड्स ऑफ मशीनरी। फर्स्ट इज द कटिंग मशीनरी, सेकंड इज द ट्रांसपोर्टिंग मशीनरी। कटिंग मशीनरी में हमारा बेसिकली हाइड्रोलिक एक्सकेवेटर, जेसीबीज, ये दो मेन यूज होते हैं। व्हाट इज हाइड्रोलिक एक्सकेवेटर? जो आप फिगर में देख रहे हैं, दिस इज नोन एज द हाइड्रोलिक एक्सकेवेटर। अब ये अलग अलग टाइप के हैं डिपेंडिंग ऑन द पावर, लिफ्ट, बकेट। इसको बकेट बोलते हैं, इसको बकेट बोलते हैं, इसको बूम बोलते हैं। डिपेंडिंग ऑन द बकेट बकेट साइज, ये कितना क्वांटिटी ऑफ मटेरियल भर सकते हैं अपने बकेट में। देयर आर डिफरेंट काइंड। कितना इसका इंजन का पावर है, कितना इसका हाइड्रोलिक एफिशिएंसी है, डिपेंडिंग ऑन दैट देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ हाइड्रोलिक एक्सकेवेटर। हम लोग साइट्स में कोमाट्सु यूज करते हैं। कोमाट्सु अच्छा है, उसकी भी अलग अलग आते हैं, एलएनटी के भी आते हैं। जेसीबी होती है कहीं, अगर जेसीबी तो आप सबको पता ही है, कोई छोटा मोटा काम करना है तो लोडर और जेसीबी का यूज हो सकता है। सब ग्रेड बनाना है, कोई हार्ड रॉक की डिगिंग करनी है, ब्लास्टिंग के बाद हार्ड रॉक निकालना है, कहीं पे कीचड़ है, लूज रॉक है, वहां तो जेसीबी में तो टायर्स होते हैं, जेसीबी नहीं चल सकती, वहां पे हमारे ये एक्सकेवेटर का यूज होता है। तो दीज आर बेसिकली द कटिंग मशीनरी। नेक्स्ट इज द ट्रांसपोर्टिंग मशीनरी। भाई मटेरियल है, सैंड को ले जाना है, सीमेंट को ले जाना है, स्टील को ले जाना है साइड पे, ब्रिक्स को ले जाना है, स्टोन को ले, तो उसके लिए हमको ट्रांसपोर्टिंग इक्विपमेंट की जरूरत होगी। ये टाटा का हाइवा है, इनकी अलग अलग डिपेंडिंग ऑन द क्वांटिटी। लाइक ये वाला जो हाइवा है 100 क्यूबिक मीटर के स्पेस क्वांटिटी है, इतना ये ले जा सकता है। फिर छोटे भी होते हैं। फिर अदर मशीनरीज है, लाइक द कंक्रीट मिक्सचर्स है, वाइब्रेटर्स है, वाइंडिंग वायर कर रहे हैं, बिटुमन कर रहे हैं, रोड रोलर्स है, पेवर मशीन है, बहुत सारे मशीनरी होती है। नेक्स्ट इज द बेसिक सर्वेइंग। हाँ, ये मैं बताना चाह रहा था। अब इंजीनियरिंग में बेसिकली हाईवे प्रोजेक्ट में हम जितने भी सर्वेइंग है वो एक इंस्ट्रूमेंट से कर लेते हैं, दिस इज नोन एज द टोटल स्टेशन। ये लाइका 07 मॉडल है। टोटल स्टेशन इज वन ऑफ द बेस्ट इंस्ट्रूमेंट दैट आई हैव यूज्ड इन द इंडस्ट्री। व्हाई इट इज द बेस्ट? एक तो इसको जो सेटअप करना है वो बहुत ही इजी है। सेकंड, इसकी जो रेंज है वो बहुत अच्छी है, 2 से 3 किलोमीटर की रेंज है। थर्ड, फोर बियरिंग और बैक बियरिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो इसमें बहुत इजीली तरीके से हैंडल हो जाता है। बेसिकली मैं आपको बताऊंगा, इसके ऊपर एक लेक्चर है कि कैसे पूरा ये वर्क करता है। अभी मैं आपको ये बताता हूँ कि इसका टोटल स्टेशन का हाईवे कंस्ट्रक्शन में यूज क्या है, इसकी हेल्प से हम क्या करते हैं। वंस वी सेट द इंस्ट्रूमेंट, सपोज हमारा 40 मीटर का लेंथ है, उसको हमने स्टेज ऑफ रोड कंस्ट्रक्शन में बता रहा हूँ। हमको क्या पता चलेगा कहाँ पे क्या है। तो हम लोग क्या करते हैं, विद द हेल्प ऑफ टोटल स्टेशन की रीडिंग आती है, इसको हम ऑटोकैड में प्लॉट कर देते हैं एंड यू विल गेट अ रोड ग्राफ। हमको रोड ग्राफ मिल जाता है और रोड ग्राफ की हेल्प से हम रोड का अलाइनमेंट निकाल देते हैं। रोड का अलाइनमेंट ये एक्सरसाइज चलती रहती है पूरे प्रोसेस में। रोड अलाइनमेंट इज वेरी नेसेसरी। नेक्स्ट इज द क्यूएस एंड द बिलिंग, बिल ऑफ क्वांटिटीज। ये सिंपल है, क्लाइंट आपको पहले से ही
नेचर ऑफ द वर्क बता देता है, उसके रेट बता देता है। ऐसी एक परफॉर्म कॉन्ट्रैक्ट सब कॉन्ट्रैक्टर्स के लिए बनाते हैं, दैट इज नोन एज सब कॉन्ट्रैक्टर बिलिंग। Advantages of learning the course: you will become the industry ready. Practical skills covered: site execution, quantity and quality surveying, billing, paperwork, quality control. Will be able to involve under a project costing around 100 crores involving clients in banking, highway, infrastructure projects. So basically this is the overview of the course. अब किस लोग के कुछ क्वेश्चन है तो फटाफट पूछ सकते हैं यार। क्वेश्चन कोई कोर्स के कंटेंट के रिगार्डिंग, क्वेश्चनिंग, किसी का कोई क्वेश्चन है? सर ये पूछ रहा था मैं कि इसमें पाइल फाउंडेशन का बेस भी ऐड करेंगे सर? हाँ जी सर, क्या क्या कह रहे हैं? पाइल फाउंडेशन का भी मतलब कि एस्टिमेशन बीबीएस बताएंगे ना? पाइल फाउंडेशन और जो मेरे को आपका वॉइस क्लियर नहीं आया। सर मैं बोला था प्री स्ट्रेसिंग गर्डर और ये इसे पाइल रिपीट कीजिए फाउंडेशन थोड़ा। का। सर आ रही है आवाज? हेलो हेलो, अब आ रही है सर? हाँ हाँ, हेलो, प्री स्ट्रेसिंग गर्डर। आ रही है और यार क्वेश्चनिंग लेनी थी बच्चों की ना, किससे क्या। हाँ आवाज आ रहा है, आप अपना क्वेश्चन पूछिए। हाँ सर मैं ये पूछ रहा था जैसे कि ब्रिज जैसे पाइल फाउंडेशन बायोडेट रहता है ना रोड का सर, ब्रिज वगैरह उसका सर उसका भी एस्टिमेशन बताएंगे ना सर? जैसे पाइल फाउंडेशन गर्डर जो होता है, प्रीस्ट्रेसिंग गर्डर का एस्टिमेट करना, मतलब कि क्वांटिटी निकालना। हाँ, क्वांटिटी निकालना और पूरा जो वो है हमारा कॉस्ट एस्टिमेशन, वो तो हमारा पूरा कवर ही होगा। जो आप फाउंडेशन का बता रहे हैं वायर डक्ट है ना, वो वायर डक्ट का हमारा वो टनल वगैरह में उसमें ज्यादा यूज होता है। हाँ, तो जितना भी हमारा कॉस्ट एस्टिमेशन है, जितना भी पूरा है, वो सब कवर होगा इसमें। और ये प्राइस वेरिएशन का थोड़ा सा मेरे को नॉलेज ज्यादा लेना है सर, क्योंकि मैं अभी काम कर रहा हूँ तो इस पे थोड़ा सा डिफिकल्टी हो रही है, तो ये सब चीज सर अच्छी तरह से कवर करेंगे ना सर? ना मैं समझ गया। वो प्राइस फॉर जो वेरिएशन है ना विद रिस्पेक्ट टू, हाँ वो कवर होगा, प्राइस वेरिएशन विद रिस्पेक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट। अच्छा और यार और वही। क्वेरीज, और कोई कुछ पूछना चाह रहा था? प्लीज यार पूछो जो भी पूछना है। और ये सर सर्वे भी रहेगा कवर सर? सर्वे का जैसे ओजीएल उठाना, पीएल ये सब मतलब प्रोसेस वगैरह। हेलो क्वेरी यार रिगार्डिंग द कोर्स कंटेंट। चैट्स में फरहान, चैट्स में कुछ बच्चों ने कुछ लिखा है, सर फ्रॉम 8 PM to Alma Vera you will getting free details on your link। और सर ये फॉर्मेट्स वगैरह मिलेंगे ना सारे सर? हाँ जी, प्राइस फॉर्मेट्स वगैरह जैसे प्राइस सर वेरिएशन। सारे स्टडी हाँ मटेरियल मिल जाएंगे सर आपको। हाँ सारे फॉर्मेट में स्टडी दूंगा यार। जैसे मटेरियल। वर्क डायरी का जो मेरा एग्जांपल है, तभी तो आपको समझ में आएगा। बिल ऑफ क्वांटिटीज है, वर्क डायरी है, ड्राइंग है, वो मैं आपको उसका दिखाऊंगा मैं, तभी तो आप लोग को समझ में आएगा। यू कैन डाउनलोड, एक मैं अपने प्रोजेक्ट से ही दे दूंगा आपको एक एक एग्जांपल सबका। और कोई क्वेरी? पूछो यार, किसी को कुछ और पूछना है, अदरवाइज वी विल बी एंडिंग द सेशन। हेलो 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 हेलो। आई थिंक द क्वेरी हैज बीन सॉल्व ना, इतने लोग को जो पूछना था पूछ लिया है। सो थैंक यू ऑल, वी विल कंक्लूड द सेशंस राइट नाउ। टेक केयर एंड गुड बाय ऑल, बाय। थैंक यू एवरीवन। ओके, थैंक यू, गुड बाय।